Now the second part of the chemical reaction and equation chapter, this is the second part. Now see, the first word which we have to study in that, this is reactant. What is reactant? Define reactants. Now, and what is product? See everyone, what is reactant, what is product? A chemical reaction. We take the example of this, write down the physical state of zinc and also aqueous. This is dilute. This gives ZnSO4. This is an example of chemical reaction plus H2 gas. The substance which participate in a chemical reaction, the substance which participate in a chemical reaction is known as reactant. It is clear? The substance which participate in a chemical reaction is known as reactant, and the substance which we get after a chemical reaction is known as product. It is clear? The substance which participate, लिख सकते हो यहाँ पर, बट इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा. The substance which participate in a chemical reaction, is known as reactant. And the substance which we get after a chemical reaction is known as product. The substance which we get after a chemical reaction is known as what? Is known as product. PRODUCT. आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, चैप्टर का शुरुआत हो चुका है. नाउ सी, लिख लोगे यहाँ पर डेफिनेशन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, चलो देखते हैं यहाँ पर. When magnesium, what happens when magnesium reacts with oxygen? हम लोग देख चुके हैं. Magnesium is burnt in air. See an example of magnesium solid plus oxygen gas. It reacts with each other and forms magnesium oxide. Here the number of atoms 1, oxygen is 2, magnesium is 1, but here oxygen is what? 1. ठीक है. A chemical equation in which number of atoms of each element present in reactant side क्या इक्वल है? यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है. A chemical equation in which a chemical reaction in which number of each element present in reactant side is not equal to the number of atoms of each element on the product side. Is known as, क्या कहोगे इसको? Is known as, इसी को कहते हैं अनबैलेंस्ड. एक तरफ अधिक है, एक तरफ कम है, देन इसको आप लोग बोलोगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. दिस इज नॉन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन.
बट एग्जामिनर इतना इजी से दे दे, इतना आसान नहीं। एग्जामिनर इसको लिखेगा एस्केल्टल रिएक्शन, एस्केल्टल रिएक्शन और एस्केल्टन, एस्केल्टन केमिकल रिएक्शन। So here this is an example of unbalanced chemical equation, skeletal reaction or skeleton chemical reaction. ना तो बोलेंगे सर तब तो बैलेंस करना होगा ना, बैलेंस करो इसको। यहाँ है Mg है, 1 है सॉलिड, दिस इज ऑक्सीजन 2 गैस, दिस गिव्स MgO solid. Now here magnesium 1, magnesium 1, oxygen 2, then multiply it with, मैंने बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो बनाया हुआ है, उससे आप देख सकते हो बैलेंसिंग के लिए, मैंने उसमें सारा सिखाया है आपको। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2। ना देखो मैग्नीशियम इस साइड भी 2, दिस साइड भी 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड is equal to the number of atoms of each element present in product side. तो सेम डेफिनेशन लिखोगे, सेम डेफिनेशन लिखोगे, a chemical equation in which number of atoms of each element present in reactant side is not equal था, आप लिख दोगे is equal to the number of atoms of each element on the product side. not equal के क्या कर दोगे, सिर्फ आपको यहाँ पे लिख देना है equal to लिख देना है, is known as balanced chemical equation. इसको सिर्फ बैलेंस्ड ही कहा जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने बैलेंसिंग सिखाया है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए चैप्टर का हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। स्केलेटन है, वीडियो पॉज करो और इसको आप लोग लिख सकते हो। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन का डेफिनेशन, a chemical equation in which number of atoms of each element present in reactant side must be equal to the number of atoms of each element present in reactant side is known as balanced chemical equation. Now types of chemical equation, types of chemical equation, देखो कोई भी chemical equation होता है ना, जैसे आपके मैंने कहा कि एक चौक ले लो, उसको तोड़ दो तो रखे रखे टूट जाएगा क्या, नहीं टूटेगा। उसका फेवरेबल कंडीशन है उसको ऊपर से गिरा दो या उसको प्रेशर लगाओ तब टूटेगा। आप एक तरफ राइस रख दो, एक तरफ वाटर रख दो, रखे रखे वो बन जाएगा क्या, नहीं। उसका फेवरेबल कंडीशन क्या है, राइस वाटर को मिलाओगे, उसके बाद उसको जाके रखो स्टोव पर, बर्नर पर, उसके बाद वो हीट होगा तब वो बनेगा। तो कोई भी घटना अगर घटती है ना, कोई भी रिएक्शन होता है ना, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तभी होता है, नहीं तो उसके बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकता है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं यहां पर। सबसे पहला आपका रिएक्शन आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो लिखते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलो क्या होगा, कंबाइन करेगा, क्या होगा, कंबाइन। तो चलिए सबसे फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है क्या होने जा रहा है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। देखो पहले एग्जांपल से, उसके बाद डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं। व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टेंस कंबाइंस टुगेदर, और भी डाल दो, when two or more than two smaller substance combine together and forms a single bigger substance। देखो A से कंपेयर करो, B से कंपेयर करो, ये बड़ा है। a single bigger substance, a single bigger substance, then this is known as what, combination reaction। बट इसमें एक चीज मिसिंग है, क्या होगा फिर से ध्यान देना। मैंने क्या डेफिनेशन बोला, a chemical reaction in which two or more than two smaller substances combine together and forms a single bigger substance is known as combination reaction। मैंने अभी बताया था
जैसे संसार में कोई भी एक घटना घटती है तो जब तक फेवरेबल कंडीशन है नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ आपको एक वर्ड और लिखना होगा, अ केमिकल रिएक्शन अंडर फेवरेबल कंडीशन ना, इस वर्ड को डालना है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू स्मॉलर सबस्टांसेस combine together under favorable condition and forms a single bigger substance is known as combination reaction. It is clear ना? मैं जैसे बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करो, धीरे धीरे लिखो। अगर लिख देता हूं यहाँ देखोगे, a chemical reaction in which two or more than two smaller substances combine together under what? Favorable condition. Under favorable condition and forms a single bigger substance is known as combination reaction. For example, carbon O2, बाकी आप अपने बुक से खोजो और लिख सकते हो। देखो इसके कंपेयर में ये छोटा सब्सटेंस से मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बना दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ना H2O2, also you may write H2O2, H2 gas, O2 gas, it reacts with each other and gives H2O एक bigger substance in comparison to O2 and H2। ठीक है, चलो तो ये हो गया आप लोग का फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीटेड ना। नाउ सेकेंड सेम है बट दिस टाइम इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? सेकेंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज, एडिशन का सब्ट्रैक्शन नहीं, टूटना। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या बोलोगे इसमें? इसमें क्या होगा? डिकम्पोज होगा ना, नाम से ही पता चल रहा है क्या होने जा रहा है। क्या लिख सकते हो? बोलेंगे सर अ सिंगल बिगर सबस्टांस स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर देन टू स्मॉलर सबस्टांस। देखो जस्ट मैंने उल्टा उसका कर दिया है। स्मॉलर सबस्टांसेस किस में होगा? अंडर फेवरेबल कंडीशन। अंडर फेवरेबल कंडीशन। इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हो आप लोग को। CaO है सॉलिड प्लस CO2 को मिला दो, गैस, ये बना दिया एक बड़ा सा सबस्टेंस CaCO3 लाइमस्टोन ना। ये भी एक एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। क्या लिखोगे? अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल, दिस इज सिंगल बिगर सबस्टेंस स्प्लिट्स अप इनटू, स्प्लिट्स टुकड़े में हो जाना, बढ़ जाना, splits up into two or more than two smaller substances under favorable condition is known as decomposition reaction. For example, जो डेफिनेशन बोला हूं वहां वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके सब कर लो, क्योंकि अगर डेफिनेशन लिखने लगा ना काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर बोलोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन में लिखे भेजा जा सकता है। देखो ये दिस इज CaCO3 बिगर सबस्टेंस ना, इसको हीट कर दो, देन इट विल गिव CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2O है, इसको भी तोड़ दो, हीट कर दो, H2 या इलेक्ट्रोलिसिस कर दो इसका, H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, मतलब छोटा सबस्टेंस टूट रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसके अलावा इसके बाद आता है यहाँ पर देखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? मतलब हम हैं, हमने आपको हटा दिया और आपकी जगह पे खुद आके बैठ गया। दैट मीन दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो देखते हैं यहाँ पर।
पढ़े हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद CuSO4 और Cu रिएक्ट्स विद FeSO4। चलो एग्जांपल से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं जिससे आप लोग के लिए आसान होगा। क्या बोला, थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Fe reacts with CuSO4, दिस इज एक्वस, पढ़ा चुका हूं पहले ही, जानबूझ के मैंने पढ़ाया था ये सारे रिएक्शन शुरू में। FeSO4, दिस इज एक्वस, ये था ब्लू कलर, ये हो गया आपका ग्रीन कलर, HCU बन गया। वन मोर एग्जाम्पल, Cu सॉलिड है, रिएक्ट्स विथ FeSO4, एक्वस है, क्या होगा, नो रिएक्शन। क्यों हुआ, क्योंकि यहां Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव किसके कंपैरिजन में, कॉपर के। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, यहां कॉपर लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अ केमिकल रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, अ केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive substance displaces a less reactive substance from its compounds under favorable condition and forms a new substance is known as displacement reaction। फिर से सुनोगे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। A chemical reaction in which a more reactive substance displaces a less reactive substance from its compound under favorable condition and forms a new substance is known as displacement reaction। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर आपको कैसे मालूम चला कि ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग यहां पर देखोगे, एक लिखोगे रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज देखो क्या होता है यहां पर। यहां पे देखो सबसे ज्यादा एक रिएक्टिव होता है केमिस्ट्री में पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, लीजिए मैंने लिख दिया, सबसे कम रिएक्टिव है, नहीं यही है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या हो गया, मेटल्स जो एलिमेंट्स है उनके डिक्रीजिंग, उनका रिएक्टिविटी के आधार पर उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको सजाया हुआ है, सजाया गया रिएक्टिविटी के आधार पर, इसी को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब सवाल उठता है कि सर इतना बड़ा हम लोग को याद रखना होगा। देखो मैंने इसका ट्रिक बनाया है जिसका है पैसा। एक आंटी जी आई, बोली कि आप क्या करना, लोहा लेकर आना, ठीक है, और पैसा मुझे नहीं दिया, तो मैंने कहा आंटी जी पैसा का बड़ा मैजिक, बड़ा मैजिक, आंटी लोहा आपको ना, हम पूरा लिख दे रहे हैं, आंटी लोहा कम चांस है कि आपको मिलेगा, कम चांस है कि आपको मिलेगा। देखो प से हो गया पोटेशियम, स से हो गया सोडियम, क से हो गया कैल्शियम, बड़ा बेरियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तो पूरा का पूरा है, आयरन, न से निकेल, टी से टीना, ल से लेड, ह से हाइड्रोजन, क से कॉपर, म से मरकरी, चांदी, सोना, और प्लेटिनम तो रहेगा ही रहेगा। नहीं तो इसके आधार पे देखो यहाँ पर कॉपर कहाँ आ रहा है, आयरन यहाँ आ रहा है और कॉपर यहाँ, जो पहले आया ज्यादा रिएक्टिव, जो बाद में आया कम रिएक्टिव। तो इससे साफ हम लोग को, चूंकि मुझे याद था, इसके आधार पे मैंने बना दिया कि हाँ ये लेस रिएक्टिव है, इसको नहीं हटा पाएगा, मोर रिएक्टिव है, ये हटा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया आज, रिएक्टेंट पढ़ा, प्रोडक्ट पढ़ा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को भी पढ़ा, स्केलेटल रिएक्शन, स्केलेटन रिएक्शन को भी पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जाते जाते रिएक्टिविटी सीरीज भी हम लोगों ने पढ़ा। वीडियो को देखते रहिए, एक एक पार्ट एक एक टॉपिक आप लोग पढ़ा दिया जाएगा। केमिस्ट्री इजी लगेगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन वगैरह आप लोग को मिलते रहेगा। थैंक यू।